और उस वक्त आपको सीधा लेकर चलते हैं ताइवान, जहां पर नैन्सी पेलोसी इस वक्त राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मिलने के लिए पहुंची हैं और वो संबोधित कर रही हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही हैं। Distinguished leaders who are here with you, Madam President. Thank you for your leadership. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing in your leadership. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. ताइवान पूरे विश्व और अमेरिका के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत है। 我们要必须向外界宣示我们非常清楚的表达，我们绝不会背弃对台湾的承诺。这次来访的许多议员们，他们也都是在各委员会当中担任主席或副主席或其他的要职，例如说外交委员会的主席比克斯，退伍军人事务委员会的主席高野，税计委员会的副主席戴碧妮，情报委员会以及防疫许多方面的贡献者， एड्रेस कर रही हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद। 金安迪等等，他们都非常荣幸能够来到台湾，也非常感谢这些议员们跟我随行一起来访。 डिफाइनिंग तस्वीरें हैं, 高兴也很荣幸 लंबे वक्त के बाद आई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसके बड़े डिप्लोमेटिक 蔡 संकेत 总统以及非常杰出的台湾的政治领导者，非常感谢各位的领导。那台湾的故事呢，其实就是一群热爱自由民主的人民的故事。 दोनों ही पक्षों का पूरा डेलीगेशन मौजूद है और इसकी हाई इंपॉर्टेंस बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. ताइवान के लोगों ने ये बिल्कुल दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि करेज और डिटर्मिनेशन, हिम्मत और धैर्य के साथ अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। 台湾是一个韧性之岛，台湾的人民也向外界证明了，只要有希望、有勇气、有决心，一定能够打造一个和平又繁荣的未来。尽管台湾面临着这么多的严峻的挑战， महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि ताइवान के समर्थन में हम एकजुट हैं। 我们这一次来访就是要向外界彰显 ऐसा कह के नैन्सी पेलोसी ने इस दौरे का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। Security, protect our people as well as global security, economy to spread prosperity in our own country and others, and governance are three principal pillars of our travel. In all three areas, we have great cooperation and friendship with Taiwan, and we value that. I just do want to mention and congratulate Taiwan for your governance of the COVID issue, the COVID pandemic. You are a model to the world in terms of the cooperation of the people and the success of your initiatives. Congratulations, Madam President. Congratulations to the people of Taiwan for following the lead and suggesting their own proposal. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. And we're grateful to the partnership of the people of Taiwan in this mission. I'm very grateful to receive this award. I'm grateful to you, Madam President, to the people for their enduring friendship. I'm very blessed, as are my colleagues, with many Taiwan Americans who are very excited about our visit. And in fact, when I came before, in '99, I came with them, and we learned a lot. And that's what we came to do, to participate in the Asian Pacific Initiative in a way that is appropriate for Taiwan to be successful, whether in trade, security, etc., and to do so in a way that opens many more possibilities. We came here to listen, to learn, and what do you know? I got this beautiful, beautiful, beautiful award. The Order of Propitious Clouds with Special Grand Pardon. Thank you, Madam President.
这一次我们ग्लोबल सिक्योरिटी, इकॉनमी और गवर्नेंस, ये तीन ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें अमेरिका और ताइवान के साथ क्लोज कोऑपरेशन है और आगे भी रहेगा। ताइवान पेंडेमिक के वक्त यानी कि कोविड को हैंडल करने के वक्त एक मॉडल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे पूरे विश्व के सामने था और मैं इसके लिए आपको हृदय से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ राष्ट्रपति जी। यूएस डिटर्मिन्ड है आपकी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए, आपको इसके लिए सपोर्ट करने के लिए। पीपल ऑफ ताइवान, ताइवान के लोगों में मैंने बहुत उत्साह देखी इस विज़िट को लेकर के। हम एक मित्र के तौर पर हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने इस विज़िट को लेकर के। एशिया पैसिफिक रीजन के हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि ट्रेड और सिक्योरिटी में ताइवान इस हद तक सक्सेसफुल हो, सफल हो, जो कि यहाँ की जनता डिज़र्व करती है। 颁证的勋章以及总统以及许多的台湾的领导阶层给我彰显了许多非常热诚的友谊。我也看到很多美国在台湾的侨民都非常的兴奋看到我们的到来。的确，1999年我那次来访的时候也学到很多，我们也在立法的殿堂当中也致力了非常多许多亚裔美国人，还有说去跟台湾之间发展更多紧密的贸易关系等许多的工作，我们都持续的在推展。这些ताइवान में नैन्सी पेलोसी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो वादे हमने किए हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान के साथ दोस्ती पर गर्व है। सुरक्षा हो या इकॉनमी हो या फिर गवर्नेंस का मैटर हो, इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम और ताइवान एक साथ हैं, अमेरिका और ताइवान। 接下来进行合议，请总统、副总统、佩洛西议长、AIT 处长及各位众议员合议。 अमेरिका अपने वादों से पीछे नहीं हटेगा। अब हम तस्वीरों में देख सकते हैं नैन्सी पेलोसी के साथ राष्ट्रपति वैंग बाहर सामने आई हैं और उनके साथ डेलीगेशन के बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि नैन्सी पेलोसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो साथ में सामने आए हैं और बड़ी ही डिफाइनिंग तस्वीरें हैं, बहुत ही इंडिकेटिव तस्वीरें हैं। सालों पहले जब नैन्सी पेलोसी यहाँ आई थी उस वक्त की बात और थी और अभी की बात और है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि अमेरिका की नीति अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। जैसा कि नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, आपका समाज दुनिया के लिए, इस क्षेत्र में शांति के लिए आए हैं, वो अभी भी ये अंडरलाइन कर रही हैं कि हम यहाँ पर शांति के लिए आए हैं, पीस के लिए आए हैं। किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई विवाद, किसी तरह की टकराव की स्थिति में अमेरिका नहीं पड़ना चाहता है। ताइवान के समर्थन में हम एकजुट हैं। नैन्सी पेलोसी भी इसके ज़रिए अच्छी तरह से जानती हैं कि जो कुछ भी वो यहाँ कहेंगी उनके एक एक शब्द के मायने चीन निकाल करके इसके तुरंत बाद जवाब देने की कोशिश करेगा। करीबन 1 घंटे के बाद ऐसा हमें लगता है कि यहाँ से नैन्सी पेलोसी को निकलना है साउथ कोरिया के लिए। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि चीन के विदेश मंत्री का क्या बयान आया है, चीन ने उनके इस विज़िट पे क्या पोजीशन लिया है। ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं, इतिहास याद रखेगा इन तस्वीरों को। हिस्टोरिक इमेजेस हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी कोई विज़िट ताइवान में हो नहीं सकती थी और इसी वजह से हमने कल रात देखा था कि खुद ताइवान की राष्ट्रपति हवाई अड्डे पर पहुंची थी नैन्सी पेलोसी और उनके साथ आए हुए डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए। और ये तस्वीर फिर से हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त की। जिस तरह से आशीष मेरे सहयोगी इन पूरी तस्वीरों को एक तरीके से डिफाइन कर रहे थे, समझा रहे थे इनके मायने क्या है। नैन्सी पेलोसी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ताइवान के साथ एकजुट हैं। एक तरफ चीन है जो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो एक तरीके से रिडिफाइन कर रहा है अपनी पूरी पॉलिसी को, और जिसके बारे में आशीष आपको बता भी रहे थे। और नैन्सी पेलोसी ने एक बार फिर कहा है कि हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। ये उन्होंने वहां के राष्ट्रपति वेंग से मुलाकात के वक्त कहा है। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।